Good afternoon, sir. Good afternoon, and today there will be introduction class of chemistry. I hope you all are safe. Your family are safe. So, Kinika, if you have any question regarding classes or timetable, because final timetable for next week will be provided by tomorrow. Mode of classes will be online for now until situation get normal. You have any question or queries regarding LCC or LIA, you can ask me, because today is just introduction class. I will focus mainly on your doubts related to operations of classes. You can either message me in chat box, or you can directly ask by turning on your mic. Sir, I want to ask something. Yeah, please tell. Sir, yes, sir. Sir, whatever is being taught now in this introductory classes, we will be taught the same things from 18th also. Yeah, yeah. If you have already attended introductory classes for physics and botany, I think the same thing will be repeated from 18th May, because many students are joining now, and before 18th all students will be prepared for classes, because many students are facing some problem for online classes. That's why we had given some time for preparation for online classes. From 18th, you have regular classes, regular and systematic classes. Initially, we will take less number of classes. For example, per subject, there will be 2 classes per week, in which we will try to cover basic part, because you have just completed your syllabus for class 10, and all students are highly motivated to see the syllabus of class 11, and you all are very sincere student. That's why you are eagerly waiting to attend classes for class 11. Any other question? So for how many hours classes will be held each day? Each day there will be 2 classes, and per class duration is about 1 hour 30 minutes. It may be 1 hour 45 minutes, depending upon your subject. But per class there is 1 hour 30 minutes, and per week, per day there will be 2 classes. Sir. Yeah. Sir, per day how many classes will be held? Means sorry sir, means 1 week, per week how many classes of per subject? If we have 4 subjects, physics, chemistry, math, biology, then per week there will be 8 classes.
If you have physics, chemistry, math, then you have 6 classes. This is only for initial period. Either this is for first or second week, and after 1 or 2 week, we will extend the timing of number of classes. We will increase number of classes after 1 or 2 week. So what about the LIS students, because they will also have subjects like English, psychology, But etc. you have just started. We are just started. That's why at for LIA we are just going to start physics, chemistry, math, biology classes. After a certain time of period, we'll start all classes for all subject. Sir, will the board level classes and entrance level classes will be same? No, board level classes will be separate, and in some subject like physics or chemistry, we will try to cover board plus entrance syllabus in one class. You can say that in chemistry, we will teach board as well as entrance in same class, because the syllabus is almost same. But in some subject like mathematics and in bio, because some students have mathematics as a optional subject, then for that we will take board classes for separately for mathematics and biology, English, physical education. All classes will be held separately. Sir, and we will get study materials. Yeah, you all will get a standard study material, DPP, daily practice problem, along with assignment. Okay. For now, So, you get all materials by, you can say, soft copy. We'll get soft copy of all materials. After online classes, or you can say, if situation get normal, then they will provide hard copy of all materials. Okay, sir. so will we have access to the recorded sessions? Pardon? So will we have access to the recorded sessions, the classes on Zoom? You will get recording from our site for whole classes. Means Okay. from next week you will get recording for whole classes. For example, if class timing is 4:30 to 6, so that will be live classes, and it is compulsory to attend live classes, because we are taking online classes in live mode, and every student has to attend that class. But if due to some problems like technical problem or any emergency case, we are also providing recording of those live classes, because some student may disconnected during class due to network issue. We are taking care of that, but preference is uh, please attend live classes. Don't wait for recording, because we have taken many classes for your senior batch and other batches, and we have seen some students are missing classes by knowing that we will get recording after class. So this is very bad or wrong way, because in live classes you are directly interacting with your teacher. You can ask your any doubts during class, and you are free to interact with your teacher. So don't try to miss any live classes, because every teacher try their best to give all things in single classes. So don't try to miss live classes, because I have seen, for example, if some student uh, um, are missing first classes of chemistry, and they think that
he or she can attend recording classes in his or her free timing, तो वो कभी हो नहीं पाता है। वो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग भी देखता नहीं है और लाइव क्लास भी अटेंड नहीं करता है, तो उसके कारण उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम आ जाता है, फिर ऐसे करके उनका पेंडिंग नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ते जाता है और फाइनली वो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो देखिए हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बताएंगे, हम लोग का थीम जो है एलसीसी और एलआईए का, सबसे पहला थीम है आप लोग किसी बैकग्राउंड से आए हों, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हों, चाहे आप किसी दूसरे स्कूल से पढ़ के आए हों, हम लोग के लिए सब स्टूडेंट सेम है। ऑल स्टूडेंट्स आर सेम फॉर अस, एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि सब स्टूडेंट को इक्वल सीखने का मौका मिले। किसी भी स्टूडेंट को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस, जैसे कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उसको उसको सीखने का ज़्यादा मन है और वो बहुत जल्दी सब चीज़ कवर कर लेता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा सब स्टूडेंट करे। बट ऐसा स्पेशल स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी है, अभी 11th में है और 12th का कोर्स ख़त्म कर देना चाहता है 11th में ही, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं और हम लोग का क्लास करते हैं और उन लोग को भी हम लोग खूब मोटिवेट करते हैं। अलग से उनका एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं कि उनका जो 11th-12th का सिलेबस हो, डिपेंडिंग अपॉन टाइम, उनका मेंटेन करते हुए उनका सिलेबस कंप्लीट करें अच्छे से। तो ऐसा किसी भी स्टूडेंट को मतलब फील होता है, तो हम लोग वैसा करने के लिए करते हैं हम लोग। और कोई डाउट? सर सर हाँ बोलिए। सर मैं सेवा बोर्ड से हूँ। अब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ है क्लास 10 का। हाँ हाँ हमें पता भी नहीं होगा या नहीं होगा, बट मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ। हाँ हाँ लेकिन जब हमें प्रोग्राम दिया जाएगा, मैं 20 डेज के पहले से क्लास नहीं कर सकता तब क्योंकि मुझे उसका भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा HSLC का। तो वो 20 डेज का सिलेबस मुझे फिर से करा दिया जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि असम का जो 10th बोर्ड होता है उसको सेवा बोलते हैं और सेवा जी का अभी कुछ फाइनल नहीं दिया है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट को मेरा सजेशन है कि आप क्लास करते रहिए, क्योंकि देखिए आप लोग सिलेबस तो 10th का पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और जैसे ही आप लोग का एग्जाम अनाउंसमेंट होता है तो स्पेशली वो सब स्टूडेंट का जो सेवा के हैं, उनके लिए वो अपना क्लास 20 डेज या 1 मंथ पहले आप क्लास मिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका, या तो हम लोग दो काम करेंगे, या तो आप लोग के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे, जो सेकंड बैच होगा उसमें आप कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन रहेगा यदि आप फर्स्ट बैच में ही करना चाहते हैं तो आपको उसका भी मौका दिया जाएगा और आपका जो भी चीज़ मिस हो गया है उसको आपको एक अलग बैच बना के आपका वो पेंडिंग पोर्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन सारे स्टूडेंट को मेरा सजेशन है कि आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लेट करके वेट करके कोई फायदा नहीं है। जितना आप वेट करेंगे उतना ही आपका लॉस होगा, और गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग वो लोग कभी भी कुछ भी चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ चेंज फेवरेबल होता है, कुछ चेंज अनफेवरेबल होता है, तो गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो आपको अपने ढंग से माइंड स्टेबल रख के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। साथ में CBSE और ICSE बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तो उनके लिए तो कोई
थर्ड ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, उनको तो पढ़ाई स्टार्ट करना ही है। लेकिन जो सेवा के हैं वो भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दे 11th पोर्शन का, क्योंकि आप लोग को हम एक चीज बताएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आप ही के एज के जो 10th में पढ़ते हुए भी 11th का कोर्स खत्म कर चुके हैं। तो वैसे स्टूडेंट को देखिए, अपने से नीचे स्टूडेंट को मत देखिए कि अरे वो अभी जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसके बाद तैयारी करेगा। मान लिया कि बोर्ड का एग्जाम अनाउंस करता है सितंबर में, तब तक आप वेट करते रहेंगे, तब तक आप लोग से बहुत सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट बहुत आगे निकल जाएंगे। तो दोनों चीज को आपको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको सेवा वाले स्टूडेंट को अभी स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन 11th का भी, और कुछ टाइम अपना, क्योंकि आप लोग सब अभी घर पे ही रह रहे हैं, कुछ टाइम अपना 10th का भी रिवीजन के लिए रखना है, कंप्लीटली उसको छोड़ नहीं देना है। क्योंकि अभी आपको जैसे 3 आवर्स यहाँ पे क्लास होगा तो आपके पास 21 आवर बचेगा। 21 आवर में आप मान लिया 7 आवर सोते हैं, तो फिर भी आपके पास 14 आवर्स पूरा आपका टाइम है। उस 14 आवर में आप 12 आवर्स बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, उस 12 आवर में आप अपना 7-8 आवर, जो सेवा के स्टूडेंट हैं उनको बोल रहे हैं, अपना 10th का रिवीजन करने में आप टाइम लगाइए। और हम लोग जो अभी पढ़ाएंगे उसके लिए आप 4 आवर्स रखिए, तो आपका दोनों चीज पैरेलल चलते रहेगा और आपको कोई लॉस भी नहीं होगा और आपका दोनों चीज होते रहेगा। सीबीएसई और सेवा के जो आईसीएसई के स्टूडेंट हैं वो अपना अभी 12 आवर का 12 आवर पूरा पढ़ाई पे ध्यान दें और उसको यूटिलाइज करें। सर क्वेश्चन? सर अभी मतलब नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस शुरू होंगे सर उसमें हम लोग को एनसीईआरटी के अलावा कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक भी खरीदना होगा क्या, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए? देखिए आप हम लोग हर सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक बताएंगे। यदि आपके पास अवेलेबिलिटी है या आप बाहर जा सकते हैं तो आप खरीद सकते हैं। यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, रिस्क है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग का जो नोट्स होता है, क्लास नोट्स, उसमें सब चीज़ बताया रहता है। आप उसी को अच्छे से पढ़िए, उसी पे क्वेश्चन बनाइए, एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व कीजिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। यही चीज़ आपका कंटिन्यू रहेगा तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। हाँ, जब मौका है ओके सर। आपको रेफरेंस बुक खरीदने का तो आप खरीद सकते हैं, अच्छा है, एक्स्ट्रा टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर कौन सा बुक रिकमेंड करेंगे आप? वो हम रेगुलर क्लास में जरूर बताएंगे। केमिस्ट्री का जो रेगुलर क्लास होगा उसमें हम सारा बुक का लिस्ट बता देंगे, अच्छा ठीक है। क्या क्या करना है। अभी जो हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं वो कैसे पढ़ना है, क्या 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 चीज़ आपको, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है और कैसे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, वो सब सारा चीज़ बताएंगे। क्योंकि आप अभी हाईली मोटिवेटेड हैं क्लास अटेंड करने के लिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आने वाला है। क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है वो सारा चीज़ अभी हम बता देंगे। वो सारा प्रॉब्लम स्टूडेंट सॉर्ट आउट कर ले और अपना जो आने वाला डिस्ट्रैक्शन है उससे बच जाए। क्योंकि अभी आप लोग का जो उम्र है, एज है, बहुत कम है। अभी आप लोग जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा काम होगा, वैसा मेहनत होगा और वही चीज़ आप बन जाएंगे। तो आप लोग को अभी हाईली मोटिवेट रहना है। कोई मोटिवेटेड रहना है, जैसे कोई सोचता है कि हमको टॉप क्लास का डॉक्टर बनना है। आज आप अपने सोसाइटी में देख रहे होंगे डॉक्टर्स का कितना डिमांड है, हाई डिमांड है। तो एक अच्छा डॉक्टर बनने का जो
आप बोल सकते हैं कि जो नींव रखा जाता है वो अभी रखा जाता है 10th के बाद। कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, आईटीएन बनना चाहता है, उसका भी अभी से ही जम के मेहनत करना होगा। कोई प्योर साइंस पढ़ना चाहता है, केवीपीवाई क्वालिफाई करना चाहता है, आईआईसी बेंगलोर में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए अभी से ही अच्छे से मेहनत करना होगा। सारा चीज़ का हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए भी अभी ही स्टार्ट करना है सारा चीज़। तो इसी एज में आप जैसा आपको डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्शन तो देखिए सबको सेम देंगे, लेकिन बहुत स्टूडेंट उस पर विश्वास करके बहुत अच्छे से उसको फॉलो करेंगे और मतलब अपने एकेडमिक लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जो इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को दूसरे एक्टिविटी में बिजी रखेंगे कि उनको ये सब चीज़ याद ही नहीं रहेगा और वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग हमेशा आप लोग को ये कोशिश करेंगे कि आप लोग अपने लाइफ में ऐसा कीजिए कि दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन जाइए। दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है कि हम नीट का एग्ज़ाम में इतना रैंक लाए, आईआईटी का एग्ज़ाम में इतना रैंक लाए, और ऐसा रैंक लाना है कि पूरा दुनिया देखते रहे क्या लेबोरियस स्टूडेंट है, कितना डिसिप्लिन है, कितना सिंसियर है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। पूरा इंडिया का हर स्टूडेंट आपका एज का सब लोग फाइट करेगा, पूरा मेहनत करेगा, लेकिन अच्छा रैंक उसी को मिलेगा जो ये 2 ईयर पूरा डिसिप्लिन रहेगा और डेविएट नहीं होगा। क्योंकि कोई भी इंसान अच्छा काम करना चाहता है तो बहुत सारा फैक्टर अच्छाई के साथ और भी आता है, बहुत सारा फैक्टर उसके साथ पैरेलली आ जाता है, और वो सारा फैक्टर क्या करता है कि अच्छा काम करने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा हैं, सिंसियर हैं, पढ़ने में ध्यान देने वाले हैं, लेकिन आपके मन में इतना कंफ्यूजन है, इतना आप क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने ही नहीं दे रहा है। आप फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए था, केमिस्ट्री जब पढ़ ले रहे हैं तो लग रहा है मैथ पढ़ लेना चाहिए था। तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है और वो क्या करते हैं, फाइनली कुछ नहीं पढ़ते। तो ऐसा कंफ्यूजन से, ऐसा जो भी निगेटिव फैक्टर है उससे बचना है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे और उनको लगेगा क्या है, मेरा दिमाग कैसा है, हम पढ़ते हैं आगे और पीछे भूलते जाते हैं, ऐसा भी लगेगा। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि सब लोग पढ़ता है, सबको एक बार में याद हो जाता है, हमको नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना है कि दुनिया का जो जितना बड़ा बड़ा काम हुआ है सब वो लोग किया है जो बहुत बड़ा फाइटर है, जो लड़ना जानता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे मेरा लगता है कि माइंड वैसा नहीं है, बाकी का माइंड ज़्यादा सही है, मेरा माइंड कम है, तो हम पढ़ने का रेट कम कर दिए। तो उससे वो तो नहीं बनता। Aku mesej sana itu. बाकी क्वेश्चन में भी हमारा परफॉर्मेंस खराब होते जाएगा। तो जैसा आप सोचिएगा वैसा ही बन जाइएगा। तो ये सब जो इतना बड़ा काम आप करने वाले हैं, बहुत हाई मोटिवेशन का ज़रूरत है, बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स का ज़रूरत है और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने का ज़रूरत है। किसी भी स्टेज में चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, अपने आप को कभी वीक फील नहीं करना है, प्री एजम्पशन नहीं करना है कि माय मैथमेटिक्स इज वीक, माय फिजिक्स इज वीक, माय केमिस्ट्री इज वीक, ऐसा नहीं सोचना है। कोई भी चीज आप पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हो सकता है उसका कोई कुछ क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो,
बट यू कैन बी मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट। आप उस सब्जेक्ट का मास्टर बन सकते हैं, इतना अंदर आपके ताकत है। बट उसके लिए अपने पे पूरा विश्वास रखना है। कोई कुछ भी बोल दे कि नहीं आप बहुत कमजोर हो, आपसे नहीं हो पाएगा, सुनना ही नहीं है। दुनिया को बोलते रहने दीजिए, दुनिया का बोलने का काम है, दुनिया को मिसगाइड करने का काम है। इस सोसाइटी में बहुत सारे निगेटिव लोग हैं, अपना काम छोड़ के दूसरे के काम के पीछे पड़े रहते हैं। मत सुनिए, आप अपने मन में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो डिसाइड कर लिए है बस उसको फॉलो कीजिए। आप अपने मन में डिसाइड कर लिए है कि हमको आईटीएन बनना है, अपना पूरा ताकत लगा दीजिए। हो सकता है कि आपसे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व ना हो, कोई बात नहीं, और ज्यादा मेहनत अपना इंक्रीज कीजिए। मेहनत करना तो आपके हाथ में है। जैसे किसी को 24 आवर्स टाइम मिलता है और उसको ये बोल दिया जाता है कि तुमको जो मन में आए करो। कोई स्टूडेंट क्या करेगा 24 आवर्स को में खूब सोएगा, ये मेरा मर्जी है हम क्या करें। तो सोना सबसे अच्छा है, सोते हैं, या जिसको खेलना पसंद है खेलते हैं। और कोई स्टूडेंट है अरे 25 आवर्स में हम अपना परफॉर्मेंस उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं जो मेरा कमजोर, थोड़ा सा हमको डर लगता है। तो ये किस चीज का हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं? हम उस चीज का प्रिपरेशन करने वाले हैं कि हम अपना मन का अंदर का डर खत्म कर सके। डर एक बार खत्म हो गया आपका तो आपको अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। तो हम लोग को मेन क्या करना है, थ्रू आउट अभी 2 इयर्स ऐसे पढ़ना है कि हम लोग को हर सब्जेक्ट में जो जो डर है उसको खत्म कर देना है। और वो डर कैसे खत्म होगा? जब आप कंसंट्रेट होना सीख जाइएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा स्थिति है, वो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा रैंक भी लाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन वो कर ही नहीं पाते। उसका रीजन है कि वो जब अपने टेबल चेयर पे बैठते हैं तो उनको मन ही नहीं लगता है, लगता है कितना बोरिंग चीज है, और वो डेविएट होके दूसरा काम करने लगते हैं। और दूसरा टाइप का स्टूडेंट क्या करता है, उसको भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उसको भी बोरिंग लगता है पढ़ाई, लेकिन वो क्या बैठा रहता है। उठने का मन करता है, बोलता है नहीं हम नहीं उठेंगे, हम बहुत जिद्दी हैं, मेरा गोल मेरे सामने है और वो गोल पूरा करने का सबसे बड़ा सबसे अच्छा चीज है अपने टेबल चेयर से उठना ही नहीं है। उठेंगे कब? जब इमरजेंसी आएगा, इमरजेंसी भूख लग गया, इमरजेंसी बाथरूम जाना है, तब उठेंगे, नहीं तो उठेंगे ही नहीं। ऐसा आप बन जाइए पत्थर के जैसा। एक बार बैठ गए टेबल चेयर पे तो हटना ही नहीं है और वहां से अपना सारा चीज पूरा करना है। ये बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। तो एक अब ये जो चीज हम बता रहे हैं उसका टाइमिंग ऑफ इनिशिएशन कुछ नहीं होता है कि अब हम आज से नहीं कल से करेंगे और कल से नहीं मंडे से करेंगे। तो टाइमिंग ऑफ इनिशिएशन कुछ नहीं होता है। टाइम ऑफ इनिशिएशन क्या होता है? जब आप में डेडिकेशन डेवलप हो गया उसी समय से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हर सेकेंड हर मोमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका जो बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, अभी तक हम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आईटीएंस भी हैं, एनआईटीएंस भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा किए और उस सब का थीम हम यही देखते थे
कि पढ़ने के टाइम में सब स्टूडेंट को हम यही सब बात बोलते थे बस, बट वो सब स्टूडेंट ये सब बातों को फॉलो किया स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए, स्टार्टिंग में थोड़ा दिन इसको फॉलो किए और फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिए। क्यों? कुछ तो फैक्टर रहा होगा, कोई उनको मिसगाइड किया होगा, तो उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा होगा। ऐसा आप लोग के साथ भी आएगा। आप लोग अभी जैसे कोर्स स्टार्ट होगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे, फिर बहुत सारा फैक्टर ऐसा आएगा जो आपको मिसगाइड करेगा। ऐसे पढ़ाया जा रहा है तुमको, सही मेथड नहीं है, पढ़ाया ऐसे जाना चाहिए। और ऐसा कौन लोग करते हैं? जिनको कम नॉलेज होता है, जो दूसरे को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं। जो भी आपको अच्छा टीचर मिलेगा वो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको बोलेगा कि तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बस अपना कलम चलाते रहो, कभी रुको मत। हर टीचर अच्छा है, हर बुक अच्छा है। कमी होता है हम लोग में, हम लोग का विश्वास में कमी होता है। हम एक बोर्ड लेवल किताब भी पढ़ें, उससे भी हम एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमको उसको विश्वास के साथ पढ़ना होगा, बहुत मन से पढ़ना होगा, उसका एक एक लाइन क्लियर करना होगा। तो आप लोग अभी जैसे स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, स्कूल जाएंगे, तो कभी कोई दोस्त आपका बोलेगा तुम कौन सा किताब सॉल्व करता है, कौन सा मटेरियल सॉल्व करता है, हम ये मटेरियल सॉल्व करते हैं। तो आपका मन भटक जाएगा, अरे लगता है हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना वो खराब है, वो जो सॉल्व करता है उसका बुक जो है ज्यादा चमकीला है, ज्यादा ब्राइट है, वो लगता है अच्छा है। बस आपका बर्बादी वहीं से स्टार्ट। ऐसे करके डेली डेली स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस खराब करते जाते। तो जहां भी आप पढ़िए उस पर पूरा विश्वास कीजिए, और विश्वास 100% होना चाहिए। 100 से थोड़ा सा भी नीचे होगा विश्वास तो आपका कमी होते जाएगा। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हम सब चीज पे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, स्टूडेंट के लाइफ पे, स्टूडेंट के थिंकिंग पे। स्टूडेंट कैसे कमजोर होता है, कब उसको पढ़ने का मन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, स्टूडेंट को पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है। कंफ्यूजन, मैथ बना रहे हैं, मैथ सॉल्व करते समय लग रहा है कि मेरा माइंड बहुत थका हुआ है। कुछ थका हुआ नहीं है, बस वो अपने आप को कमजोर फील करा रहे हैं। चलो इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, और उठ के अपने टेबल चेयर जो उनका पोजीशन है वहां से उठ के वो टीवी देखने चले जाते हैं, मोबाइल गेम खेलने लगते हैं। बस हो गया उनका बर्बादी स्टार्ट। हम जो आज के इंट्रोडक्शन क्लास में पहला पॉइंट बता रहे हैं वो चीज एकदम याद रखो। अपने टेबल और चेयर से जहां पे आपका स्टडी पोजीशन है, स्टडी पोजीशन, इट शुड बी फिक्स्ड। आप लोग स्टूडेंट हैं, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पढ़ाई के अलावा उनके पेरेंट्स दूसरा काम देते होंगे, हमको सब पता है। अब अपना स्टडी पोजीशन से हिलिए ही मत, चाहे आपका सिलेबस खत्म हो जाए, चाहे अभी कुछ पढ़ने को नहीं हो। कोई भी किताब, ऊपर वाले ने किताब इतना अच्छा चीज बना के दिया है, ज्ञान का भंडार है उसमें। कुछ पढ़ने को नहीं है, मेरा सिलेबस कंप्लीट है, एक किताब उठाइए, मोटिवेशनल किताब ही पढ़िए, लेकिन कुछ पढ़िए, लेकिन अपना एक टेबल चेयर से हटिए नहीं। कब तक? जब तक कि आप स्टूडेंट हैं, और अभी आपका स्टूडेंट लाइफ का पीक पीरियड चल रहा है।
अभी आप 11th-12th कीजिएगा, फिर ग्रेजुएशन में जाइएगा। अभी 11th-12th में जितना मन से आप पढ़िएगा उतना इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में जाइएगा, और उतना अच्छे फैकल्टी का, उतना अच्छा आपको फैसिलिटी मिलेगा। वो कब मिलेगा? वो आपके 11th-12th के इस फिक्स्ड पोजीशन के कारण मिलेगा। और जो स्टूडेंट इस फिक्स पोजीशन से हटेगा, बार बार अपने आप को डेविएट करेगा, बार बार उठ के खाने चले जाएगा, हम क्या बोले हैं, इससे कब हटना है? इमरजेंसी सिचुएशन में। बहुत लोग क्या करते हैं, टाइम फिक्स कर लेते हैं, मेरा 10 बजे रात को खाने का टाइम है। 10 बजा नहीं, 9:30 से उनका वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो गया, उनको खाना का खुशबू आने लगा, और 9:30 से पढ़ाई छोड़ के जाके खाना खाने बैठ गए और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आपको सबसे ज्यादा भूख होना चाहिए आपके पढ़ाई का, सबसे ज्यादा। और यदि आपके सबसे ज्यादा भूख आपको पढ़ाई का नहीं है तो आप स्टूडेंट नहीं है। अपने मम्मी पापा को बोल दीजिए कि हम स्टूडेंट नहीं है, हमको मत पढ़ाइए, हमको पढ़ाई का भूख ही नहीं है, हमको तो बार बार खाने का मन करता है, हमको बार बार टीवी देखने का मन करता है, हम तो शाहरुख खान बनना चाहते हैं, माधुरी दीक्षित बनना चाहते हैं, बोल दीजिए। तो ये डेडिकेशन लेवल आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में अभी स्टडी पीरियड का सबसे पीक टाइम है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, और ये जो जहाँ पे जितना ज्यादा फिक्स रहेगा उतना ही अच्छा कॉलेज में जाएगा, और उसका लाइफ वो उतना ही चेंज करेगा। ग्रेजुएशन जिसका जैसा होता है, जैसा वो टॉप मोस्ट कॉलेज में जाता है, उसका आगे का लाइफ वैसा ही कन्वर्ट होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेजुएशन कोई IIT से किया, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि उनको वर्ल्ड का वेस्ट जॉब मिलता है, बेस्ट जॉब मिलता है ग्रेजुएशन जो IIT से करते हैं। IIT, IIM, जो MBBS टॉप कॉलेज से करते हैं, वो भी इंडिया के सब टॉप डॉक्टर हैं, जिनके पास दिखाने के लिए 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि 2 मिनट के लिए कम से कम हमको देख लीजिए। तो उनका प्रीवियस हिस्ट्री आप खोल के देखिएगा, वो अपने स्टडी टाइम में फिक्स रहते थे, उठते ही नहीं थे। होली आए, दुर्गा पूजा आए, ईद आए, कुछ भी आए, उठते ही नहीं थे। उनके आसपास के लोगों से पूछ लीजिएगा। तो ये चीज आप में बहुत पहला चीज है जो आपको फॉलो करना है। पढ़ने को कुछ नहीं है, 10th का किताब उठा के पढ़ते रहिए, 9th का किताब उठा के पढ़ते रहिए। 9th 10th का आपका जो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री था, वही देखिए 11th 12th में यूज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होगा। वो चीज वीक लग रहा है, उसका थ्योरम पढ़ लीजिए फिर से, उसका डेरिवेशन देख लीजिए फिर से। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना कमी नहीं है। तो ये सब सारा चीज क्या पढ़ना है आपको मालूम है। अब एक बार टेबल चेयर पे बैठे रहिएगा, तो टेबल चेयर पे 2 काम आप कीजिएगा, या तो आप टेबल चेयर पे सो जाइएगा, या तो आप टेबल चेयर पे रहेंगे तो आपको कुछ पढ़ने का ही मन करेगा। टेबल चेयर पे किसी को खेलने का मन नहीं करता है। टेबल चेयर पे बैठने का मतलब, हम ये चीज भी बोल दे रहे हैं, टेबल चेयर पे बैठने का मतलब मोबाइल को अपने से दूर रखना है, स्मार्टफोन नहीं रखना है अपने साथ। स्मार्टफोन सिर्फ तब रखना है जब आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। बाकी टाइम अपना स्मार्टफोन अपने मम्मी पापा को दे देना है, अपने गार्जियन को दे देना है। उसके अलावा आपको जरूरत क्या है स्मार्टफोन का? सारा चीज किताब में लिखा हुआ है, सारा चीज हम लोग क्लास नोट्स में बताएंगे, कुछ अलग से जरूरत ही नहीं है। आप स्टडी टेबल पे अपना मोबाइल फोन रखिएगा तो आपको हर टाइम व्हाट्सएप चेक करने का मन करेगा, यूट्यूब देखने का मन करेगा। यूट्यूब में आप हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लें, यूट्यूब पे इतना इंटरटेनमेंट का साधन है कि हर समय आपको इंटरटेनमेंट में मन लग जाएगा, और धीरे धीरे करके आपको इतना कमजोर बना देगा कि आप किसी लायक ही नहीं रहेंगे, किसी लायक ही नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे आप। तो हम लोग स्टूडेंट को क्या करते हैं, हम लोग के सामने स्टूडेंट गलती करता है, इतना भयंकर ढंग से डांटते हैं, मोबाइल यूज करता है,
देखते हैं पढ़ने का उसको मन नहीं कर रहा है, इतना भयंकर ढंग से डांटते हैं, उसका हालत खराब हो जाता है। दोबारा उसका हिम्मत नहीं होगा कि मेरे सामने मोबाइल यूज कर ले और ये यूज कर ले। तुमको मोबाइल ऑपरेटर बनना है क्या? मोबाइल ऑपरेटर बनना है, मोबाइल का दुकान खोलना है क्या, जो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो? ये सब चीज से बिल्कुल आपको बच के रहना है। वो आपका लक्ष्य नहीं है कि मोबाइल में गेम खेलने में आप टॉप करेंगे। आपका लक्ष्य अलग है। अच्छे अच्छे लोगों के बारे में सोचिए। आज जो भी इंडिया में टॉप पे हैं, टॉप के डॉक्टर हैं, टॉप के इंजीनियर हैं, टॉप के प्रोफेसर हैं, टॉप के साइंटिस्ट हैं, उनको देखिए, उनका लाइफ स्टाइल देखिए। आपको ये सब चीज बिल्कुल बेकार लगेगा। क्या हम कर रहे थे? बेकार का अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो वो सब चीज देखिए, अच्छी अच्छी चीज सोचिए। तो स्टडी टेबल पे आप अपने को मोबाइल से दूर रखिएगा, तब आपको अच्छा अच्छा चीज सोचने का मन करेगा। नहीं तो पूरा टाइम लगेगा कि हम बस गलत एक्टिविटी में बिजी रहें। और इस टाइम का एज भी ऐसा है, इस टाइम का एज ऐसा होता है, इजिली स्टूडेंट गलत चीज में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको अपने आप पे कम कंट्रोल होता है। लेकिन हम लोग यदि इसी एज में अपने आप को कुछ चीज से बांध लें कि नहीं, जब हम टेबल चेयर पे रहते हैं तो नहीं हम हटेंगे अपने टेबल चेयर से। खाने पीने और सोने के अलावा जितना टाइम है हम इस पे बैठे रहेंगे, और अभी मोबाइल के बिना। और ऐसा सिर्फ 1-2 दिन नहीं करना है, 2 साल अभी करना है। फिर देखिए आपका कैसा रिजल्ट आता है। आप 10 तक यदि थोड़ा पढ़ाई में कम भी ध्यान था आपका, या आपका मार्क्स खराब आया था, सब चीज सही हो जाएगा, सब कमी फील हो जाएगा। किसी स्टूडेंट का 10th में परफॉर्मेंस खराब हुआ तो क्यों हुआ? उतना सीरियस नहीं था और उसका खराब हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी बहुत पीक टाइम है, 11th-12th में वो गलती नहीं दोहराना है। हम ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं, 10th में बहुत खराब मार्क्स आया उनका, और वो 11th-12th में अपने आप को इतना सीरियस कर लिए कि बाकी सब स्टूडेंट को पीछे छोड़ दी। और इसमें बस उनका डेडिकेशन और ये हार्डवर्क ही था। हार्डवर्क मतलब एक जगह बैठना, हर क्वेश्चन पे सोचना, हर क्वेश्चन पे डाउट क्रिएट करना, उसको टीचर से डिस्कस करना, और वो अपने आप को सबसे सही कर लिए, सही पोजीशन में ले आए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका हम एग्जांपल दे सकते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। आपका भी यदि परफॉर्मेंस पहले खराब था, डरना नहीं है। आगे की चीजों से, जो भी चीज पढ़ाया जाए उसको पूरा इंटरेस्ट से पढ़िए, पूरा मन से पढ़िए, और ऐसे पढ़िए कि दुनिया में उसको उस ढंग से कोई नहीं पढ़ सकता। ऐसे पढ़ना है कोई चीजों को, इतना मन से पढ़ना है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं। किसी लैंग्वेज में पढ़ें, असामीज में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, लैंग्वेज तो बस एक सहारा है अपने आप को प्रेजेंट करने का। आपको जो लैंग्वेज में पढ़ना है, हम लोग जो क्लास लेते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं, जिससे हर स्टूडेंट को समझ में आए, चाहे असामीज बोर्ड से हो, चाहे इंग्लिश बोर्ड से हो, चाहे हिंदी बोर्ड से हो, हर स्टूडेंट को समझ में आएगा सब पॉइंट। लैंग्वेज साइंस को नहीं रोक सकता है रास्ता। थोड़ा बहुत शुरू में डिफिकल्टी हो सकता है। हम भी हिंदी बोर्ड से थे, तो हम भी 10th के बाद इंग्लिश बोर्ड में गए, तो हमको भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हुआ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, बस थोड़ा दिन। क्योंकि साइंस का बहुत सिंपल लैंग्वेज होता है, बहुत हाई फाई इंग्लिश यूज नहीं किया जाता है उसमें। तो आप थोड़ा दिन स्ट्रगल कीजिएगा, बस सब चीज आपको समझ में आने लगेगा। और उस स्ट्रगल में बहुत लोग क्या करते हैं, अपने पथ से, अपने पाथ से भटक जाते हैं और फिर मिसगाइडेड हो जाते हैं। ऊपर वाले आपका हर समय पेशेंस चेक करते रहते हैं, देखते हैं कितना दिन तक झेल पाता है, कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इसको डिफिकल्टी देके देखते हैं, इसको प्रॉब्लम देके देखते हैं, कर पाता है कि नहीं, ये पेशेंस अपना मेंटेन कर पाता है, नहीं कर पाता है तो कमजोर है। कर लेता है, अरे बहुत स्ट्रांग है, इसको तो हर सिचुएशन में खड़ा रहता है, गिरता ही नहीं है। तो वैसा ही स्टूडेंट आगे टॉपर्स कहलाता है, और सब लोग उसको देख के सैल्यूट करते हैं।
तो आप वैसा स्टूडेंट बनिए। कोई किसी से कमजोर नहीं है। अभी आप अपने आप को यदि कमजोर के श्रेणी में मानते हैं, तो जो जो चीज हम बताएं यदि आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप भी टॉप के श्रेणी में आ जाएंगे, टॉप लेवल स्टूडेंट के श्रेणी में आ जाएंगे। बस हर चीज को फॉलो कीजिए और हर चीज को बहुत सीरियसनेस से, बहुत डेप्थ से पढ़िए पहले, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए कि हर पढ़ाया चीज आपको याद रहे। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं, वो सब क्लास भी कर लेते हैं, सब चीज सीख भी लेते हैं, लेकिन वो जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पीछे की चीज भूलते जाते हैं। क्यों भूलते जाते हैं? क्योंकि उनको पीछे का चीज का रिवीजन ही नहीं रहता। वो बस करंट वाला चीज पढ़ते हैं और पीछे वाला चीज जो हो गया उसको भूल जाते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी हाल होगा, 10th का अभी ये कंप्लीट किए हैं, 10th का 9th का सारा चीज भूल गए होंगे। क्यों? वो कभी उसको देखे ही नहीं पलट के रिवीजन करना है, क्या करना है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आगे जो जो बढ़ते हैं उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सबको क्लियर है? Yes, sir. कंटिन्यूटी एंड रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो आप कोई चीज भी नया चीज पढ़ेंगे तो उसका रिवीजन पे जरूर ध्यान देंगे। बहुत लोग अच्छे होते हैं पढ़ाई में, उनको सब चीज समझ में भी आ जाता है, लेकिन वो रिवीजन पोर्शन भूल जाते हैं, रिवाइज ही करना भूल जाते हैं, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे फिक्स रहिएगा ना, उतना ज्यादा आपको रिवीजन करने का मन करेगा। रिवीजन करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, लाइक जैसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गया, रेगुलर टेस्ट हो गया, सब सारा चीज हम लोग स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं जिससे वो कि रेगुलर रिवीजन कर सके। टेस्ट में नया नया क्वेश्चन देते हैं, प्रीवियस टॉपिक का क्वेश्चन दे देते हैं, जिससे वो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके और अच्छे से उसको सॉल्व कर सके। थर्ड पॉइंट है, आप लोगों को ये याद रखना है, जो भी क्लास अनाउंस हो, डोंट मिस एनी क्लास। एक भी क्लास, लाइव क्लास, अभी तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो कोई भी ऑनलाइन लाइव क्लास आपको मिस नहीं करना, इस भरोसे में कि उसका रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाता है, हम उसको बाद में अटेंड कर लेंगे। बिल्कुल गलत तरीका है, इट इज वेरी रॉन्ग वे, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपका तबीयत खराब भी है, फिर भी आप बैठ के, घर में तो बैठना है, सुनते रहिए सर क्या बता रहे हैं, मत मिस करने का कोशिश मत कीजिए, प्रोवाइडेड बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस ना आ जाए। इमरजेंसी केस मतलब कुछ दूसरा टाइप का केस आ गया, जिसमें उस केस में आप, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट ऐसे आप क्लास मिस मत कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी। आप यदि कंटिन्यूटी अपने में नहीं रखेंगे तो आपको बहुत चीज का लॉस होगा, और आपका हो सकता है इंटरेस्ट खत्म हो जाए पढ़ाई से। जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का 2 क्लास कर लिए, तीसरा क्लास मिस कर दिए, तो 4th क्लास में आपको बहुत कमजोरी फील होगा। कमजोरी मीन्स आपको लगेगा कि हम बहुत सारी चीज मिस कर चुके हैं, तो 5th क्लास में आपको इंटरेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, फिर भी क्लास अटेंड कीजिए। जो भी टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, हम लोग जो भी होमवर्क देंगे, डोंट मिस एनी होमवर्क। एक भी होमवर्क जो भी टीचर प्रोवाइड करेगा उसको मिस नहीं करना है। सारे होमवर्क को सिस्टमेटिकली अपने कॉपी में करते जाना है। आपका क्लास नोट्स अलग होगा, होमवर्क का कॉपी अलग होगा। एक क्लास नोट्स रखिए, जैसे केमिस्ट्री का है तो एक क्लास नोट्स, उसमें सर जो जो पढ़ाते हैं वो सारा चीज एक जगह लिखना है, सिस्टमेटिकली लिखते जाना है। और दूसरा जो कॉपी होगा वही केमिस्ट्री का होमवर्क कॉपी होगा। सर जो भी होमवर्क देते हैं, सर कुछ भी होमवर्क दे, ABCD लिखने के लिए दे दें,
ABCD भी उसी में लिखेंगे, होमवर्क वाले कॉपी में। कोई भी होमवर्क दे उसी में लिखेंगे। तो हर सब्जेक्ट का ऐसे आपके पास 2 कॉपी होना चाहिए। एक क्लास नोट्स, उस क्लास नोट्स में जो सर बताएं सिर्फ वो लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख देना है। और वो जो क्लास नोट्स है आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। वही नोट्स को, क्लास नोट्स को जैसे अभी पढ़ाया गया तो 1 मंथ बाद आपको उसी को पढ़ना है, क्योंकि वो सबसे अच्छा चीज है। क्यों? आप उस चीज पे मेहनत कर चुके हो, इतना मेहनत कर चुके हो, जब हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो आप उस हर चीज को नोट कर रहे हो। वो भी कैसे? लाइव, सर समझा रहे हैं तब आप लिख रहे हो। तो वो सारा पॉइंट आपके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। तो आप जब उसको 1 महीना बाद, 2 महीना बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसको रिवीजन करने में। आपको लगेगा ये सब चीज तो डिस्कस हो चुका है, सब चीज तो पढ़ा हुआ है। इसलिए उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आज एक चीज पढ़े, नेक्स्ट मंथ दूसरे जगह से पढ़ लेते हैं, उसके नेक्स्ट मंथ तीसरे जगह से पढ़ लेते हैं। तो पहला जो रिवीजन नोट्स, पहला जो उनका क्लास नोट्स था वो बेकार हो जाता है। तो फिर उनको कोई चीज याद नहीं रह पाता है, वो भूल जाते हैं मैक्सिमम चीज। तो क्लास नोट्स आपको बहुत अच्छे से ये रखना है। और 5th पॉइंट, जो भी चीज आपका है उसका जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। डोंट मिस एनी क्लास। तीनों सिमिलर सेंटेंस है, होमवर्क एंड टेस्ट। ये आपका प्रिपरेशन कंप्लीट करवा देगा। अब 5th पॉइंट के बाद 6th पॉइंट, 2 टाइप का कॉपी बनाना है। पहला कॉपी क्लास नोट्स होगा एंड दूसरा कॉपी जो होगा होमवर्क कॉपी होगा। क्लास नोट्स अलग, होमवर्क कॉपी अलग। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 ईयर जो भी स्टूडेंट फॉलो कर लेगा। 6 पॉइंट सिर्फ नहीं है, बहुत सारा पॉइंट इसमें मिक्स्ड है। कोई अपने पोजीशन से नहीं हिलता है, अपने स्टडी टेबल से इधर उधर नहीं जाता है, तो सारे बैड हैबिट से बच गया। मोबाइल यूज करना बंद कर देगा, इधर उधर उसका ध्यान नहीं जाएगा, टीवी देखना बंद हो जाएगा, बहुत सारा चीज इसमें मिक्स है। रिवीजन, रिवीजन इसका ये होगा कि उसको जो भी पीछे का चीज है उसका फॉर्मूला सब चीज उसको याद रहेगा, तो रिवीजन भी उसका बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वो क्लास में रिप्लाई भी अच्छे से दे पाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस से बिल्डअप होते जाएगा और उसका पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट बना रहेगा। डोंट मिस एनी क्लास, ये आपको बहुत बड़ा चीज सिखाता है, एक डिसिप्लिन भी सिखाता है। और ये सबसे बड़ा चीज ये दिखाता है कि आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसका आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपने लाइफ में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे गुरु के से पढ़े हैं और हम देखे हैं कि हर टीचर नॉलेज का सागर होते हैं। हम उन पे जितना ज्यादा विश्वास किए, उनका क्लास जितना मन से किए, उस सब्जेक्ट में मेरा उतना ही अच्छा मार्क्स आया। और जिसमें हम थोड़ा सा बहुत भी कमी किए, वो मेरा सब्जेक्ट गड़बड़ा गया। तो ये चीज आपको दिखाता है कि आप टीचर पे कितना % विश्वास करते हैं। यदि आप क्लास जानबूझ के मिस कर दे रहे हैं तो यानी कि आप अपने टीचर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। 100% विश्वास जो हम बोले थे आपको, 100% फेथ आप नहीं कर रहे हैं, और वो आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। वो आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली कम आने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम क्या बोले हैं, टीचर पे, जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं उन पे 100% विश्वास कीजिए, तब आपका सीखने का रेट और डबल ट्रिपल हो जाएगा। आपके मन में डाउट रहेगा, कोई बोल देगा कि अच्छा कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, उस टीचर से पढ़ रहे हो, वो टीचर अच्छा नहीं है, बस वो तो नेगेटिव पर्सन अपना बर्बादी कर ही रहा है, आपका ही बर्बादी कर देगा।
आपका मन में डाउट आ गया, आपका विश्वास 100 से नीचे हो गया, 99, 98 हो गया, कुछ दिन बाद वो कुछ और बोल देगा, ये मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, वो अच्छा मटेरियल नहीं है, आपका परसेंटेज और कम गया। मतलब अपने टीचर पे विश्वास करना जैसे ही छोड़ेंगे, आपका बर्बादी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम इस चीज को इसलिए बोल रहे हैं कि आप जितना ज्यादा विश्वास करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। होमवर्क जो है, होमवर्क को सिस्टमेटिक करना है, क्योंकि एक पढ़ने का इंटरेस्ट क्रिएट करने का बहुत बड़ा साधन है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखें, वो पढ़ता है, क्लास कर लिया बस, होमवर्क करने के लिए तो उसको बैठना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। वो क्या करता है, उस समय मस्ती करता है। एक पॉइंट उसको पकड़ के रखेगा, आज क्लास हुआ, कल उसका होमवर्क सबमिट करना है, तो क्लास करके वो फिर अपना सेल्फ स्टडी टाइम में होमवर्क करेगा। ऐसे करके उसका रेगुलरिटी बन जाएगा, और वो रेगुलरिटी वो मेंटेन करते हुए उसको पढ़ने का बहुत मन करने लगेगा, बहुत मन करेगा उसको पढ़ने का। कह रहे नहीं, हमको एक दिन, हम आज तक हम होमवर्क मिस नहीं किया, आज क्यों करेंगे, आज भी थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी हम आज अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये उसको डेडिकेशन और ये चीज सिखाएगा कि नहीं, मिस नहीं करना है। और उसको कोई भी होमवर्क दिया जाएगा तो सबसे पहले खाना पीना के पहले वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। ये चीज उसको डेडिकेशन सिखाएगा। डोंट मिस एनी टेस्ट, ये आपका सब चीज चेक हो जाएगा। इसमें आप कितना देर घर में बैठ के पढ़े हैं, सारा क्लास किए हैं कि नहीं किए हैं, सारा होमवर्क किए हैं कि नहीं किए हैं, और रिवीजन किए हैं कि नहीं किए। ये सारा एबव 4 पॉइंट्स आर चेक्ड इन दिस टेस्ट। इस टेस्ट में जैसे 100 मार्क्स का हम टेस्ट लिए, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया, यानी कि आप चारों पॉइंट बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। कम मार्क्स आया, यानी कि दिखा देगा ये टेस्ट कि आप सीरियस नहीं हैं, आप ये चारों पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको हर चीज बता देगा टेस्ट का मार्क्स ही। तो टेस्ट इसलिए मिस नहीं करना है कि आपको परफॉर्मेंस का रिपोर्ट दे देगा बस 1 आवर के टेस्ट में। 1 आवर के टेस्ट में बता देगा कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, बस तुरंत बता देगा। और टेस्ट मिस करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या होता है, टेस्ट नहीं देंगे, मेरा मार्क्स कम आ जाएगा तो नोटिस बोर्ड पे सबको पता चल जाएगा कि मेरा मार्क्स कम है। पता चलने दो, पता चलने दो, मत डरो। तुम्हारा कम नंबर आता है, पता चलने दो, बट उसको पॉजिटिवली लो कि सर बोले थे टेस्ट देने के लिए, हम दे दिए, मेरा मार्क्स बहुत कम आया। कम क्यों आया? गो थ्रू एबव 4 पॉइंट्स। भाई आप इसमें कमी किए हो, कुछ तो कुछ कमी किए हो, ढूंढो उसको। हो सकता है आप स्टडी टेबल पे बैठ भी गए, लेकिन फिर भी इधर उधर आपका दिमाग है, कहीं और सोच रहे हैं। ढूंढो उस कमी को, ढूंढ के इसको दूर करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ सर, हमको बोले थे टेबल चेयर में बैठने के लिए, हम बैठ भी गए, फिर भी मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। टेस्ट में मार्क्स कम आया, यानी कि अच्छा कुछ कमी हो रहा है, मेरे में उतना कंसंट्रेशन लेवल नहीं बढ़ा है। फिर क्या करोगे, तुम अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। और कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है? व्हाट इज कंसंट्रेशन लेवल? जब हम किसी एक चीज के बारे में सोच रहे हैं तो बस उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। हम जब फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा दिमाग सिर्फ फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है। एक कंसंट्रेशन होता है। और आपके लेवल में, आपके एज में ये कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही अच्छे ढंग से इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत ही सबसे अच्छा चांस रहता है कंसंट्रेशन लेवल इस एज में इंप्रूव करने का। तो बहुत ही अच्छा टेक्निक तुम लोग को बता रहे हैं। यदि आपको विश्वास है मेरे ऊपर तो ये सब चीज फॉलो कीजिए, क्योंकि हम आप में से हर स्टूडेंट को 2 साल के बाद
टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप का मेडिकल कॉलेज और टॉप का यूनिवर्सिटी में पढ़ते देखना चाहते हैं। आज कोई भी स्टूडेंट आईटी गुवाहाटी में पढ़ता है, मिलने आता है, आईटी कानपुर में पढ़ता है, देखते हैं, मिलने आता है, मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको बस ये चाहिए कि भगवान ने मेरे को जो ताकत दिया है, आज तक लाइफ में मेरे को जो चीज भी सिखाया है, वो मैं दूसरों को सिखा सकूं। भगवान हमको इसी चीज के लिए यहाँ भेजे हैं, और यदि वो सक्सेसफुली हम दूसरे को सिखा पा रहे हैं तो मेरा लाइफ सक्सेसफुल है। और हमें यही काम कर रहे हैं कि यंग जनरेशन को हम सही रास्ता दिखा रहे हैं। ये जो चीज छोटा मोटा चीज में अपना टाइम वेस्ट कर ले रहे हो, इधर उधर देख के दूसरे अपने दोस्त को फॉलो कर रहे हो, मत करो, रुक जाओ, रुक जाओ और अपने उस टेबल चेयर पे बैठ जाओ और अपना कमी के बारे में सोचो, अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के बारे में सोचो। दूसरों को फॉलो करोगे, गलत दोस्तों को फॉलो करोगे तो तुम भी गलत बन जाओगे। और इस दुनिया में जो सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन है आपके माँ और पिताजी, उनका सर दुनिया में आपके कारण झुक जाएगा, आपके कारण झुकेगा उनका सर, क्योंकि आप सही चीज फॉलो नहीं कर रहे। तो ऑल थिंग्स आर कोरिलेटेड। आज हम देखते हैं कोई भी सक्सेसफुल स्टूडेंट आता है डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आते हैं और उनके चेहरे पे, उनके पेरेंट्स के चेहरे पे इतना हम खुशी देखते हैं जो अनकंपेरेबल होता है। तो आप अच्छे से पढ़ के इस दुनिया का जो दूसरा भगवान है, आपके माँ बाप, उनको आप बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हो। आप ऐसा गिफ्ट दे रहे हो जो कि वो जिंदगी भर उस पर प्राउड फील करेंगे। एक माँ बाप को अपने बच्चे को बड़ा करना कितना डिफिकल्ट होता है। हर सिचुएशन में अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, कोई भी दुख नहीं आने देते। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप अपना पूरा ताकत लगा दें, पूरा अपना कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज कर लें, कुछ कमी का मौका ना दे। जैसे वो कोई कमी नहीं किया, आप भी कुछ कमी नहीं कीजिए। और अपने माँ पिताजी को सबसे बड़ा गिफ्ट दीजिए कि आप इस 2 ईयर पढ़ के 2 ईयर में ऐसा पढ़िए कि पूरा दुनिया देखते जाए। क्योंकि आप हो सकता है कि आने वाले सबसे सक्सेसफुल इंसान हो, किसी के बारे में कोई नहीं जानता है, कोई किसी के बारे में नहीं जानता है, कोई इंसान कुछ भी कर सकता है यदि वो सही समय पे सही ढंग से जाग गया। तो सोए रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, सोए रहेगा तो सोए रहेगा। तो आपके अंदर के आत्मा को जगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस पर बहुत ज्यादा निगेटिव फैक्टर जमा हो गया है, उसको जगाइए। और कौन जगा सकता है? आप खुद जगा सकते हैं। सोने का मन करता है हमको दिन भर, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए, टेबल चेयर पे बैठे रहिए, अच्छा अच्छा किताब पढ़िए, अच्छा बात सोचिए, सोने का मन कभी करेगा ही नहीं। अपने से ऊपर वाले टॉपर्स को देखिए, ये देखिए कि 100 में 100 कौन ला रहा है और मेरा 100 में 70 ही क्यों आ रहा है। हम भी 100 में 100 लाएंगे। और 100 में 100 कैसे आएगा? सो के आएगा? टीवी देख के आएगा? मोबाइल देख के आएगा? नहीं, पसीना बहाने से आएगा। टेबल चेयर पे बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। एक बुक का प्रॉब्लम खत्म हो गया, दूसरे बुक का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जितना प्रैक्टिस उतना माइंड शार्प होते जाएगा, उतना माइंड ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाएगा और आप उतना ही अच्छा मार्क्स लाएंगे और सारे टॉपर्स को फेल कर देंगे। और ऐसा बात हम सब लोगों को बोल रहे हैं, सब लोगों को, हर स्टूडेंट को ये बात बोल रहे हैं कि अपने में कमजोरी फील मत करो कि तुम किसी से कमजोर हो। स्कूल के में तुम्हारा 20 नंबर रोल नंबर था या 20 पोजीशन पे थे, आप 60 पोजीशन पे थे।
हम सबसे कमजोर स्टूडेंट को भी ऊपर आते देखे हैं। क्यों? बस अपने आप को वेल डिसिप्लिन कर लिया, अपने अंदर मोटिवेशन ले आया, अपने आत्मा को जगा दिया कि अपने पाथ से हिला ही नहीं। और लोग बोलते हैं फैसिलिटी का, मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। कोई रोल नहीं है फैसिलिटी का, कोई रोल नहीं है। आपको, आप लक्की हैं यदि आपको कॉपी कलम और किताब मिल गया है, आप उसी में सब चीज कर सकते हैं। बस अपने आप को जगा के देखिए, आप हर चीज उसी में आप गेन कर सकते हैं। बस अपने आप को जगाना है और टीचर का बात सुनना है, टीचर का बातों पे विश्वास करना है, उनको फॉलो करना है, और उसका जो भी होमवर्क हो, कम हो ज्यादा हो, उसको 100% कंप्लीट करना है, टेस्ट मिस नहीं करना है। सबको ये बात क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग पढ़ाई, स्टडी, तो आप बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास। तो कोई हम सब्जेक्ट बात स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ बताइए। सर, आप लोग जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे या फिर कोई और भाषा में, लाइक हिंदी और असमीज? क्योंकि मैं हम लोग जो सेवा से पढ़ाते हूँ हैं, थोड़ा। हम लोग का मेनली, हम लोग जो थ्योरी वगैरह लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे, बट जो हम लोग बोलेंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स होगा। हिंदी प्लस इंग्लिश, मैक्सिमम सिंपल टर्म्स का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि हम लोग साइंस पढ़ाते हैं और साइंस का एक सिंपल लैंग्वेज होता है, और वो सिंपल लैंग्वेज हम जिस चीज में कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें हम बताते हैं। जैसे हम आपको हर चीज हिंदी में भी रिपीट करेंगे, इंग्लिश में भी रिपीट करेंगे, आपको दोनों मौका मिलेगा। वैसे बाकी रेस्ट फैकल्टी भी जो हैं, आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, और यदि आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आपको फुल फ्रीडम है कि आप अपने उस फैकल्टी को, जैसे मान लिया कोई स्टूडेंट को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने फैकल्टी को मैसेज कर दीजिए या कॉल, मतलब क्लास में ही बोल दीजिए कि आपको कंप्लीट इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो फिर मिक्स करके बोलने लगेंगे। इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ पे आपके पास कोई फॉर्मेलिटी करने नहीं आए हैं या अपना नॉलेज दिखाने नहीं आए हैं कि मेरे को बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने आता है, हम वो करने नहीं आए हैं, या हम को इतना केमिस्ट्री आता है, हम वो चीज नहीं करने आए हैं। हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, हम आपको सिखाने आए हैं, वो मेरा मेन थीम है। और वो चीज हम यदि नहीं कर पा रहे हैं आप लोग के सामने, या आप लोग को डिफिकल्टी फील हो रहा है किसी भी पॉइंट में, तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, आप कुछ चीज भी बोल सकते हैं। डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। और कोई डाउट? तो ठीक है, और कोई डाउट नहीं है तो हम लोग केमिस्ट्री में कुछ देख लेते हैं आज। केमिस्ट्री में बस ये चीज बता रहे हैं जो कि हम लोग आगे भी इसको पढ़ेंगे डिटेल में। केमिस्ट्री आप लोग का 11th और 12th का जो सिलेबस है,
11th और 12th का सिलेबस में केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट को फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, सेकंड पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग 9th 10th में सब चीज पढ़े हुए हैं, बट अभी हम लोग उसी को और एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि 9th 10th में जो आप लोग का केमिस्ट्री का सिलेबस था बहुत ही कम था और बहुत ही मतलब लिमिटेड चीज दिया हुआ था। इस कारण से बहुत स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को एक्चुअली पहचानते ही नहीं है। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री आप चाहे इंजीनियरिंग का तैयारी करें, चाहे मेडिकल का तैयारी करें, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हर जगह। चाहे आपको आईआईटी क्वालिफाई करना है, चाहे नीट क्वालिफाई करना है, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है यदि इस पे सही ढंग से प्रैक्टिस किया जाए। केमिस्ट्री का एडवांटेज ये है, ये सिर्फ एक रेगुलरिटी चाहता है। ये आपका ज्यादा टाइम नहीं चाहता है कि आप इसको सबसे ज्यादा देर पढ़िए। सबसे ज्यादा टाइम चाहता है मैथमेटिक्स। मैथ आपको बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करता है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है और बहुत नया नया क्वेश्चन बन जाता है मैथमेटिक्स में। तो आप अपना जब पढ़ाई करेंगे, यदि आप इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में आप सबसे ज्यादा टाइम देंगे। और जब आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा टाइम देंगे। केमिस्ट्री आपका दोनों जगह है, तो दोनों जगह सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है, बट इंजीनियरिंग के लिए जेईई एडवांस का सिलेबस तो उतना ही है, बट उसका थोड़ा टेक्निक डिफरेंट है। उसमें क्वेश्चंस बहुत नए नए आते हैं और बहुत ट्विस्टेड टाइप के आते हैं, नॉर्मल थ्योरी पे नहीं आते हैं। वो क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो जेईई एडवांस के लिए हम लोग अलग क्लास कंडक्ट करेंगे। जेईई मेन और नीट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो दोनों को सेम ढंग से पढ़ाया जाएगा, जिससे सारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली, इसमें एक अच्छा थ्योरी रहना चाहिए, याद बहुत कम चीज करना है, जस्ट लाइक फिजिक्स, बहुत कम चीज याद करना है। फिजिकल केमिस्ट्री का 2-3 चैप्टर तो आपका फिजिक्स से ही आया है, मॉडर्न फिजिक्स से, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, सब फिजिक्स से ही आया है। इसका कुछ चैप्टर कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब मेनली आपको थ्योरी पढ़ना है और कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, इसमें याद कुछ नहीं करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सेकंड पार्ट है, और इसमें भी कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट एंड फिर इसमें थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस आता है, उसको बैलेंस करते थे पहले, बैलेंस करने के बाद वो केमिकल रिएक्शन याद करना पड़ता था कि दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, वो याद करना पड़ता था। तो इसमें कॉन्सेप्ट पहले आएगा और प्लस उसको याद करना होगा, मतलब इसमें थोड़ा आपको मेमोरी पावर का यूज करना पड़ेगा। तो इट नीड्स मैक्सिमम रिवीजन। याद भी ऐसे नहीं करना है जैसे हम लोग बचपन में करते, बस आपको बस नोट्स देखते रहना है। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, किसका क्या प्रोडक्ट होगा, उसका एक लिस्ट बना लेना है। तो सबका टेक्निक बताएंगे, बट इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिवीजन थोड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड होगा।
फिजिकल में उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा जितना इनऑर्गेनिक में होगा। और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री जो है बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें, प्लस रिवीजन रहेगा। इसमें मेमोराइज करने का कुछ ऐसा चीज नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या बताया, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, कैलकुलेशन, practice will involve calculations, and inorganic chemistry concept plus revision includes memory, and organic concept plus रिवीजन में क्या चीज ध्यान देना है इसमें, लॉजिक। यही आपका केमिस्ट्री का 2 साल का ओवरव्यू है। मेमोरी का थोड़ा यूज यहाँ पे बस हो रहा है, और इसी कारण से पूरे केमिस्ट्री को लोग बदनाम कर देते हैं और केमिस्ट्री को बोल देते हैं कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट। तो उस मिसगाइडेंस में कभी नहीं आना है। Excuse me, sir. हाँ, Sir, will we be taught of the deleted chapters of class 10? pardon, The deleted chapters of class 10? for your final exam? No, in this coaching for chemistry, like the carbon and its compounds, deleted portions. You can revise those portions because they will be used in class 11 or 12. You can revise those portions also. Okay, sir. बिकॉज देखिए ऑनलाइन मोड हुआ, उसके कारण से गवर्नमेंट ने वो सिलेबस रिड्यूस किया। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो चैप्टर हट गया आपके नॉलेज से, वो तो 11th और 12th में फिर से आएगा। तो आप अपने फ्री टाइम में यू कैन लर्न ऑल दोस टॉपिक्स। क्लियर है? तो यही ओवरव्यू है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में कौन कौन सा बुक फॉलो करेंगे और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आप लोग का कोई डाउट है? सर अभी जो ट्यूसडे से क्लासेस होगा तब हमारा इंग्लिश क्लासेस ये सब नहीं होगा, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स होगा। अभी हम वो स्टार्टिंग में बोले थे कि अभी फर्स्ट 2 वीक आपका सिर्फ केमिस्ट्री, मैथ और बायो का क्लासेस होगा। आफ्टर रिमेनिंग पोर्शन का क्लास होगा। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बोर्ड भी पढ़ाना होता है, एंट्रेंस भी पढ़ाना होता है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सब सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए करवाया जाता है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? सर हाँ सर, जो क्लासेस होंगे वो इवनिंग में होंगे क्या? क्लासेस इवनिंग में होंगे अभी ऑनलाइन। इवनिंग में मतलब किसी का किस टाइम में सब लोग कंफर्टेबल है? Sir, from 4:30 or इवनिंग या मॉर्निंग, किस टाइम में कंफर्टेबल है सब लोग? मॉर्निंग। morning. Sir, morning. मॉर्निंग में तो मॉर्निंग स्कूल होगा ना? क्लास रहता है। स्कूल कितने बजे तक होता है? Sir, Sir, 12 o'clock. 8 से स्टार्ट होता है 12 तक। अच्छा, एट से 12। सर एलआईए का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलआईए का स्टूडेंट का तो फ्री होगा दोनों टाइम, मॉर्निंग इवनिंग दोनों फ्री होगा। एलसीए कुछ स्टूडेंट का स्कूलिंग होगा, स्कूलिंग के दूसरी जगह करते हैं, उसमें इवनिंग टाइम उनका फ्री होगा सर।
इवनिंग टाइम उनका फ्री होगा, मॉर्निंग टाइम उनका फ्री नहीं होगा शायद। Yes, sir. Yes, sir. इवनिंग ठीक है। ठीक है, मतलब हम लोग उसका फाइनल टाइम टेबल आपको कल तक भेज देंगे, और कोई प्रॉब्लम होने से आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्टली मैसेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे। सर हाँ सर वो क्लास नोट्स का हम लोग को हार्ड कॉपी मिलेगा क्या? क्लास नोट्स का हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, आपको खुद लिखना है क्लास में, अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। आपको खुद लिखते जाना है अपने हैंड राइटिंग में। एनी अदर डाउट? Sir, नो जो सर। एप्लीकेशन है ललन्स कोचिंग का, हम लोग उसको यूज करेंगे शायद। हाँ ऐप, हाँ आप लोग को सबको ऐड कर दिया जाएगा उस ऐप में, उसी के थ्रू आपका टेस्ट भी होगा। आप उसमें अपना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं, ये टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। आप लोग को उसका सबको पासवर्ड और लिंक दिया जाएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड सब स्टूडेंट का अलग अलग रहेगा, तो कमिंग वीक में सबको ऐड कर दिया जाएगा उसमें। Okay, sir. एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। तो ये क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा आज रात तक, और जब भी आपको पढ़ने में कभी भी निगेटिविटी फील हो तो ये लेक्चर आप जरूर सुनिएगा फिर से, क्योंकि इस लेक्चर में हम बहुत सारा चीज बोले हैं कि पढ़ाई क्यों जरूरी है और पढ़ाई कैसे किया जाता है। उससे थोड़ा भी डेविएट नहीं होना है। कोई यदि आपको डेविएट करने की कोशिश करता है तो इग्नोर करना है। आप टेबल चेयर में बैठे रह रहे हैं और आपको कोई आगे बोल रहा है कि नहीं थोड़ा मस्ती कर लो, ये सब चीज मत सुनिए। आप सर। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। हेलो सर। हाँ सर आपका नंबर मिलेगा क्या? नंबर मेरा आप लोगों का ग्रुप में एडेड है, हम मैसेज करेंगे। ऐसे मेरा नंबर है 8822 839899। इसमें ग्रुप में एडेड है मेरा नंबर। मेरा नाम हो गया ललन कुमार। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। नेक्स्ट वीक मिलते हैं केमिस्ट्री के साथ। Thank you, sir. ओके सर, बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Sir.